Hello everyone. Welcome to all of you in this online video classes. Students, till now we have read and learned three chapters of class 12 entrepreneurship. This is the first video of class 12 entrepreneurship chapter number 4, that is enterprise growth strategies. Now I am starting the chapter number 4, that is enterprise growth strategies. Students, I hope you have read and learned the previous chapters very well. If you have any doubt, then please ask questions in live stream classes. And student, it is compulsory, it is mandatory for all of you to attend live stream classes. So it's a request to all of you to attend live stream classes which are held and organized by our school on particular date and timings. Is it clear? So now student, we are moving the fourth chapter, that is enterprise growth strategies. First of all, student, I am telling you that I will tell you that particular portion of particular topic related to particular chapters have been reduced this year due to the COVID pandemic. So first of all, students, first we move the content part of this chapter. This is the content part: franchising, merger and acquisition, value addition, and moving up the value chain. These are the content of this chapter. So first basic thing is that the topics that have been deleted from this chapter this year is reasons for failure of merger and acquisitions, various reasons of failure of merger and acquisitions, concept of value addition, meaning of value chain, and understand the requirement of value chain management. That means the reason of failure of merger and acquisition have been deleted from your course, from your syllabus, and the value chain topic, value chain, is completely reduced from your course. Is it clear? So on in this chapter we have read only, we will read the meaning of franchising, the types of franchising, the various possible mergers and acquisition, type of merger, the meaning and type of acquisition, reason for merger and acquisition. These topic we have learned in this chapter, and the topic that we have not to learn in this chapter: reason for failure of merger and acquisition, concept of value addition, meaning of value chain, and requirement for value chain management. You must underline these topics. Now students, we are moving our first topic related to this chapter. The name of this chapter is enterprise growth strategy. That means this chapter indicate that how can organization grow in this environment, how can an organization grow in business environment, in our near environment. First is growth and development of an enterprise. I am reading it here. Growth is always essential for existence of a business concern. A concern is bound to die if it does not try to expand its activities. The entrepreneur is an endless challenge seeker. Once their small business is humming along, growth is the next exciting challenge. The decision to extend the scope of one business must be result of thoughtful consideration of various factors, including the financial, logistical, even his or emotional readiness. The rule of thumb is that one should only expand when there are untapped opportunity that can benefit the business. This is the key paragraph that have explained that growth is necessary for an organization. Without growing any organization, it can't be possible we survive in future. So growth is necessary for any business.
इज इट क्लियर? तो यदि हमें बिजनेस को कंटिन्यू करना है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है और ह्यूज प्रॉफिट अर्न करना है, और जो हमारी बिजनेस की गुडविल है उसको एक्सपैंड करना है, तो ग्रोथ हमारे लिए, बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी फॉर्म में हम ग्रोथ कर सकते हैं। हम वेरियस मेथड्स देखेंगे, और क्लास 11 में भी अपने स्टूडेंट्स जो वेरियस ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी, इंटरनल एक्सपेंशन यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 11, तो आपने देखा था कि बहुत सारे जो एक्सपेंशन मेथड, ग्रोथ मेथड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किए थे मैंने, और हमने क्लास 11 की बुक में उनको देखा था। Now students, the expansion of a concern may be in the activities or acquisition of ownership and control of other concern. Thus, expansion may be internal expansion and external expansion. तो बेसिकली यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरनल एक्सपेंशन एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल एक्सपेंशन. व्हाट इज इंटरनल एक्सपेंशन? You have already learned in class 11 chapter number 5. You have already learned the various type of internal expansion. Simply meaning that means organization increase, expand business in current situation of business. It may be more product, it may be introducing by more product, it may be introducing new market of product. So various type of expansion we have already read. In class 11 we have read market penetration strategy, product development strategy, market development strategy. We have already read about the ends of product grid. तो हमने उसके अंदर देखा था कि किस तरीके से एक बिजनेस इंटरनली एक्सपैंड कर सकता है. The here I am reading, the internal expansion can also be undertaken by taking up the production of more units or by entering new fields of the production and marketing sites. Internal expansion may be financed by the issue of more share capital, generating funds from old profits, or by issuing long-term securities. तो यहाँ पे बताया गया कि हम किस तरीके से इंटरनल एक्सपेंशन कर सकते हैं. दैट मीन्स कहने का मतलब है, हम एक बिजनेस, जो हमारा खुद का बिजनेस है, किसी दूसरे बिजनेस से हम इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम हमारे बिजनेस को ही किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास भी हैं, आपने आसपास भी देखते हैं. जस्ट लाइक मैगी, यदि हम एग्जाम्पल लें मैगी का, तो पहले सिर्फ मैगी नूडल्स था, लेकिन उसको और मार्केट कैप्चर करना था और अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना था, तो बहुत सारे प्रोडक्ट उसने मार्केट में न्यू लॉन्च कर दिए. मैगी सॉस है, मैगी मसाला है, मैगी नूडल्स है, मैगी सूप है, मैगी रेडी टू ईट है. तो बहुत सारे उसने अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर दिया. तो बहुत सारे आप ऐसे बिजनेसेस देखेंगे कि आप मार्केट, वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, या जो हमारा उनका मार्केट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं. पहले हो सकता है कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर जो एरिया है वहां पे सेल होता है, अब हो सकता है अपने मार्केट, अपने सेल को डबल करने के लिए, बहुत इंक्रीज करने के लिए हो सकता है उन्होंने मार्केट इंक्रीज कर दिया हो. उसके अलावा हमने देखा था मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजीज. उसके अंदर हमने देखा था कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को की ही सेल को किस तरीके से डबल करना, किस तरीके से इंक्रीज करना. तो हमने यहाँ पे उसके एग्जांपल्स देखे थे कि टूथपेस्ट का एक एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से ऐड करना, प्रमोशन करना. पहले ये होता था कि नॉर्मल टूथपेस्ट का ऐड आ रहा है, अब ये कि दिन में 2 बार करना बहुत अच्छा है कैविटीज से बचने के लिए, जर्म से बचने के लिए. तो दैट मीन्स यदि पहले जो चीज मंथली एक कंज्यूम होती थी, 1 प्रोडक्ट कंज्यूम होता था, अब यदि वो डबल कंज्यूम हो रहा है तो डबल टाइम कंज्यूम होगा. तो इस तरीके से हम हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही हम उसकी सेल को इंक्रीज कर रहे हैं, हम हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को का ही जो हम उसकी सेल इंक्रीज करके, चाहे से वो
हो सकता है हमारे जो बिजनेस है हम और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकें, या हो सकता है हम बहुत जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज कर दें। हम हो सकता है एक स्टेट कवर है, अब 2 से 3 स्टेट कवर कर रहे हैं, अब हो सकता है एंटायर कंट्री कवर करने लगे, हो सकता है अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। और ये सारे मेथड्स ये जो इंटरनल एक्सपेंशन के वेज थे वो हमने क्लास 11th से जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, उसके अंदर हमने इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करी थी। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है इंटरनल एक्सपेंशन, उसके बारे में इस बुक में और क्लास 12 बुक में कुछ स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि ये क्लास 11 का पार्ट था। इस जो क्लास 12 का पार्ट है वो है एक्सटर्नल एक्सपेंशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो दिस वन इज द पार्ट ऑफ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप बुक, एक्सटर्नल एक्सपेंशन। एंड एक्सटर्नल एक्सपेंशन क्या होता है? बेसिकली इंटरनल एक्सपेंशन में हम देखा था वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है किसी और बिजनेस से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, वो खुद के ही बिजनेस को, खुद के ही प्रॉफिट को इंक्रीज करने के मेथड्स फाइंड आउट करता है, अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करके, मार्केट शेयर इंक्रीज करके, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ वेरिएशन लेके आके। तो इस तरीके से वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ या एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसी से ग्रोथ अचीव करता है या ग्रोथ अचीव करने के लिए ट्राई करता है। लेकिन एक्सटर्नल एक्सपेंशन दैट मीन्स हमारा जो बिजनेस है एक्सटर्नली एक्सपेंड करना, दैट मीन्स हम किसी और बिजनेस से को भी क्या कर रहे हैं, को हमारे अंदर हमारे बिजनेस में हो सकता है हम हमारे उस बिजनेस को मर्ज कर ले किसी दूसरे बिजनेस को। हो सकता है जो हमारा कोई कॉम्पिटिटर हो उसको हम हमारे बिजनेस में एक्वायर कर ले। हो सकता है हम हमारे जो बिजनेस है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर ले। सपोज कीजिए पहले एक ही सिटी में थी, अब हो सकता है उसी सिटी में 5 to 6 हम शॉप्स ओपन कर लें। हो सकता है जो हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर बिजनेस है, दैट मीन्स जो हमारे टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है, अब हो सकता है हम उसको उस कंपनी को परचेज कर लें और पूरी कंपनी हमारे अंडर में ले लें। अब जो उस कंपनी की सेल है वो भी हमारी सेल होगी और जो हमारी सेल है वो भी हमारी खुद की सेल होगी। तो हम हमारा इस तरीके से मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज which we learn in this chapter, the various ways of external expansion. And what is the definition of external expansion? Here it is given, I am reading it here. External expansion refers to business combination where two or more concerns combine and expand their business activities. Is it clear? That means two or more business combine, mix होते हैं and expand their business activities. In the process of combination, two or more units engage in similar business or related process or stages. सपोज कीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल को उस जो बिजनेस है उसका कोई दूसरी कंपनी सप्लाई करती है। यदि हम बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हो सकता है हम जो रॉ मटेरियल कंपनी सप्लाई कर रही है हम उसको एक्वायर कर लें। अब क्या होगा, हमें रॉ मटेरियल कंपनी हमने एक्वायर कर लिया है, सारा रॉ मटेरियल हमारे अंडर में बनेगा, प्राइसेस वो हमसे प्रॉफिट चार्ज नहीं करेंगे, हमें रीजनेबल रेट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, टाइमली वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। या हो सकता है हम जो हमारी सपोज कीजिए हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी सेल कर रही है, उसका मार्केटिंग से रिलेटेड काम कोई दूसरी कंपनी कर रही है, तो अब हम हो सकता है उसको एक्वायर कर ले, तो अब मार्केटिंग एंड सेल से रिलेटेड वर्क भी हमारा हो जाएगा। So basically external expansion refers to the business combination where two or more concerns combine and expand their business activities. In the process of combination, two or more units engage in similar business or related process or stages. Sometimes stages of the same business join with a view to carry on their activities or shape their policies on common basis, some other or in coordination for mutual benefit or maximum profit. होल सोल ये बात है कि जो भी एक्टिविटी होती है वो म्यूचुअल जो दोनों कंपनी का बेनिफिट होने के लिए या जो प्रॉफिट जो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सके उसके लिए बेसिकली एक्टिविटीज होती है। The combination may be among competing units or units engaged in different processes. After combination, the constituted firm pursues some common objective or goals.
दैट मीन्स यदि कंपनीज यदि मर्ज हो जाती है तो देन आफ्टर वो क्या होता है, ऐसा नहीं कि ए कंपनी और बी कंपनी मर्ज हुई है, अब तो ए कंपनी अपना सोचेगी, बी कंपनी आफ्टर मर्जिंग वो कंपनी हो जाएगी ए बी, वो दोनों का कॉमन जो बेनिफिट होगा उसके लिए वो वर्क करेंगी. इज इट क्लियर? In this unit, we will focus the main form of external expansion, which are franchising, merger, and acquisition. Simply है कि इस जो फॉर्म है, इस बिजनेस है जिसमें एक्सटर्नल एक्सपेंशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो जो एक्सटर्नल एक्सपेंशन के जो मेन फॉर्म है, फ्रेंचाइजिंग, मर्जर एंड द थर्ड वन इज एक्विजिशन. तो हम इनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसके बारे में जो कंप्लीट इसके मीनिंग, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो हमें आइडिया लग पाएगा कि यदि हमें एक्सटर्नल एक्सपेंशन करना है बिजनेस में, तो हम किस तरीके से, क्या हमारे पास वे हैं कि इस तरीके से हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सटर्नली एक्सपैंड कर सकते हैं. तो हम इन दोनों जो तीनों है फॉर्म्स, इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. फर्स्ट जो फॉर्म है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे मैं जो फ्रेंचाइजिंग के बारे में है उसके एक बार उसके रीड कर रही हूँ. डेफिनेशन क्या गिवन है? फ्रेंचाइजिंग इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय द मैन्युफैक्चरर और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए ट्रेडमार्क प्रोडक्ट और सर्विस gives exclusive rights of local distribution to independent retailers in return for their payment of royalties and conformance to standardized operating procedure. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसको बहुत क्लियर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको ये डेफिनेशन वन बाय वन क्लियर होती जाएगी. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैकडोनाल्ड है, आप लोग सब देखते हैं, उसकी बहुत सारी, अभी मैं इसको एक तरीके से बोलती हूँ ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस है. उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, आउटसाइड द इंडिया, बहुत सारी जगह उसकी ब्रांचेस है. तो ब्रांचेस बेसिकली क्या है, एक फ्रेंचाइजी है, वो एक फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट है. सिंपली इसको और अच्छा से हम यहाँ पे क्लियर देखते हैं. बेसिकली होता क्या है, ये जो मैकडोनाल्ड जो मेन ब्रांच है, मेन जो फर्म है, वो उन्होंने क्या कर दिया है, जैसे एक न्यूज़पेपर में ऐड देना या टीवी में ऐड देना, किस तरीके से कि यदि किसी के पास में इतना फंड है या पर्टिकुलर स्पेस है, तो वो फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकता है. तो बेसिक उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सा मैं सपोज कीजिए एक इन्वेस्टर हूँ, मैं इन फंड इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ. मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं एक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एक बिजनेस को मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, कि बिल्कुल सब कुछ उसका लैंड, लेबर, मटेरियल, प्रोसेस, मशीनरी, सब कुछ मैं डिसाइड करूं, मैं स्टार्ट करूं, फंड मैं डिसाइड करूं, उस बिजनेस को कैसे सेटअप करना है, सब कुछ मैं करूं. तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये होता है. दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे पास फंड्स अवेलेबल है, लेकिन मैं एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो मार्केट में बहुत रेप्यूटेड है, मैं वो बिजनेस स्टार्ट कर दूं, ताकि मेरे को जो उसके प्रमोशन है या जो उसका मुझे सेटअप करना है, बेसिक सेटअप है, उसका जो इनिशियल प्रमोशन है, वो सब मुझे नहीं करना पड़े. एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसका ब्रांड नेम से सब लोग फेमिलियर हो कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में, और मैं इजीली अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर पाऊं, सेल कर पाऊं. तो दैट जो सेकंड पार्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, दैट इज फ्रेंचाइजिंग. इससे क्या होगा कि जो बिजनेस है, फ्रेंचाइजिंग जो बिजनेस है, तो यदि सपोज कीजिए मेरे पास फंड है, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, मैंने फ्रेंचाइजिंग बिजनेस फ्रेंचाइजी ले ली है किसी बिजनेस की, तो दैट मीन्स मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. और जो फ्रेंचाइजर है, जो फर्म है जिसने अपना बिजनेस किसी और को अपनी ब्रांच ओपन करने के लिए एक्सेप्ट किया है, तो वो है फ्रेंचाइजर. दैट मीन्स जो हेड है वो है फ्रेंचाइजर, और जो डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस ओपन करते हैं वो है फ्रेंचाइजी. तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि फ्रेंचाइजर है जो मेन बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, अलग अलग जगह ब्रांचेस खोल रहा है, अलग अलग जगह उसके कस्टमर्स बनेंगे, एंड कस्टमर्स को वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करेंगे, एंड देन आफ्टर दे विल अर्न प्रॉफिट.
ये होगा, इससे तो जो फ्रेंचाइजर है उसको बेनिफिट होगा। फ्रेंचाइजी को क्या बेनिफिट होगा कि फ्रेंचाइजी को जो इनिशियल स्टार्टिंग जो करनी है वो सारे एफर्ट्स उसको नहीं करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे। एक रेप्यूटेड ब्रांड से वो कनेक्ट हो जाएगा, उसको प्रमोशनल मेथड इतने नहीं करने पड़ेंगे, प्रमोशन जो वेज है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि प्रमोशनल वेज है वो उसको नहीं करने पड़ेंगे। उसके अलावा एक रेप्यूटेड बिजनेस में वो इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको जो बिजनेस फेलियर है उसके चांसेस भी नहीं रहेंगे, और वो उस बिजनेस को करना स्टार्ट कर देगा। अब फ्रेंचाइजर, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जो फ्रेंचाइजर है, जो पर्सन है, जो बिजनेस का हेड है, वो क्यों देगा फ्रेंचाइजी किसी दूसरे पर्सन को अपना बिजनेस को यूनिट या अपना बिजनेस करने क्यों देगा? तो उसका रीजन ये है कि उसको उसके रिटर्न में एक फीस मिलेगी, दैट इज रॉयल्टी। क्या मिलेगा उसको रिटर्न में? रॉयल्टी उसको अवेलेबल होगी। इसको समझने के लिए यहाँ पे केस स्टडी गिवन है आप ही की बुक में, जो पेज नंबर 140 पे गिवन है। हम यहाँ पे इसको रीड कर रहे हैं, कंप्लीट केस स्टडी को मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, जो उसके की पॉइंट्स है मैं वो रीड कर रही हूँ। आप लोग सेल्फ रीड करेंगे इसकी जो कंप्लीट केस स्टडी है। यहाँ पे गिवन है ये केस स्टडी नंबर 1, गोली वड़ा पाव। इसकी जो की लाइंस है मैंने अंडरलाइन कर यहाँ पे की है, मैं सिर्फ वो की लाइंस को रीड कर रही हूँ, उसके थ्रू आपको इस फ्रेंचाइजी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यदि आपको ये समझ में आ रहा है बिजनेस किस तरीके से है, तो आप इजीली आप फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन समझ पाएंगे, बहुत अच्छा से आप इसको लर्न भी कर पाएंगे। गोली वड़ा पाव, launched in 2004, Goli Vada Pav, repacked vada pav, a humble street food popular in Mumbai, into a branded fast food concept. It follows franchisee business model and today is uniquely positioned in Indian quick service restaurant segment. Is it clear? जैसे आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है? फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है, एक स्ट्रीट फूड है जो बेसिकली वड़ा पाव उससे रिलेटेड है। तो हम इस देखेंगे इस बिजनेस में कि उसने अपने बिजनेस को, एक वड़ा पाव जो बिजनेस है इसका, तो उसने अपने बिजनेस की अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरियाज में सिमिलर ब्रांचेस ओपन करी है। एंड उन ब्रांचेस को ओपन करके उसने अपने बिजनेस को क्या किया है? एक्सपैंड किया है। और जिन लोगों ने वो ब्रांचेस एक्वायर की है, जिन्होंने अपने अंडर, जिन्होंने फ्रेंचाइजी जिन्होंने से अपने अंडर में लिया है, जो लोग वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी एक पॉपुलर बिजनेस से नेम उनका जुड़ गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, लॉन्च इन 2004, गोली वड़ा पाव रीपेक्ड वड़ा पाव, एक हम्बल स्ट्रीट फूड पॉपुलर इन मुंबई into a branded fast food concept. It follows franchisee business model and today is uniquely positioned in Indian quick service restaurant segment. आगे हम देखेंगे ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट, किस तरीके से डेवलप हुआ, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया। तो हम देख रहे हैं, द आइडिया ऑफ इंडियन फिंगर फूड गोली वड़ा पाव प्राइवेट लिमिटेड वाज बोर्न दैट रिटेल द हम्बल माउथ वाटरिंग spicy ethnic delicacy which was pocket friendly, that means reasonable rate पे, as well as prepared and served in hygienic conditions. Indian QSR market is flooded with the brands like McDonald's, Subway and Cuisinos, but the success of the brand Goli Vada Pav number 1 reaffirms the fact that a strong homegrown concept and can not only thrive but also compete with international brands. Is it clear? आगे, what make concept so special? Vada pav is basically a spicy vegetable patty in buns sold by street food vendors. The brand Goli Vada Pav number 1 has pioneered the concept of selling vada pav through retail outlet. जो अपने प्रोडक्ट्स है उसको कैसे सेल कर रहा है? It sells its product through retail outlets. अब हम देखते हैं सक्सेस जर्नी टिल नाउ। इसकी सक्सेस, जो बड़ा पाव है उसकी सक्सेस जर्नी क्या रही है? इट ऑपरेट्स अबाउट 150 स्टोर्स ऑफ विच ओवर 140 आर वाया फ्रेंचाइजी रूट। अभी मतलब इस बिजनेस की ने इतना सक्सेस अचीव किया है कि अभी तक टोटल 150 स्टोर्स है, जिसमें से 140 स्टोर्स उसने फ्रेंचाइजी रूट की से स्टार्ट किए हैं।
सिंपली मीनिंग ये है कि एक पर्सन के लिए पॉसिबल है 150 स्टोर्स ओपन करना? नहीं, उसके लिए कितना चाहिए? मिनिमम 150 पर्सन चाहिए, और एक पर्सन तो ये टास्क नहीं कर सकता। तो किस तरीके से उन्होंने बिजनेस ओपन किया? जो लोग ऐसे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उन्होंने इस जो गोली वड़ा पाव है लिमिटेड है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, और उन बिजनेस ने जो गोली वड़ा पाव है उन्होंने उनको फ्रेंचाइजी दे दी है इन रिटर्न ऑफ मंथली फी, कि आप हमारा जो सिमिलर बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है उसको आप एक्सपेंड करोगे, हमारे जो प्रोडक्ट है सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर स्पाइस वो आप यूज करोगे, टेक्नोलॉजी बिल्कुल सिमिलर होगी, आप यूज करोगे और कस्टमर्स को बिल्कुल जो हमारा प्रोडक्ट है वो सप्लाई करोगे। आप जो सप्लाई करोगे, आपको जो सेल होगी उसमें जो आपका प्रॉफिट पोर्शन होगा उसमें हम हमारा जो रेप्यूटेड बिजनेस ब्रांड है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, तो उसके रिटर्न में आप हमें एक मंथली फी प्रोवाइड करोगे, और वो फी होती है रॉयल्टी। तो एक बिजनेसमैन, सपोज कीजिए मैं एक नॉर्मल केस में क्या होगा, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत सारी रिस्क भी है, मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हर वो बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे उसके प्रमोशन करना है, हो सकता है मेरी इनिशियल जो सेल हो वो बहुत लो हो, धीरे धीरे इंक्रीज हो। अब इस केस में क्या होगा, मुझे एग्जिस्टिंग रेप्यूटेड बिजनेस मिल गया है, उसकी सेल भी अच्छी होगी, अब बस मुझे उसके लिए रिटर्न में क्या देना है, एक मंथली फी पे करनी है, जो एक एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में, कि तुम मेरा बिजनेस करोगे लेकिन मुझे रिटर्न में एक फी दोगे। तो ये पहले से जब एग्रीमेंट होता है तभी डिसाइड हो जाता है। तो इस तरीके से वो लोग 150 स्टोर्स खोल पाए, ओपन कर पाए। इट ऑपरेट्स अबाउट 150 स्टोर्स, of which over 140 are via franchisee route. Lucrative business opportunity. The brand concept offers lucrative business opportunity for aspiring franchisees. That means जो franchisees को लेने के लिए रेडी हैं, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप यदि फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा बिजनेस भी क्या कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली उस बिजनेस का जो ब्रांड नेम है, गुडविल है, वो भी इंक्रीज होगी, और जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना चाहिए था वो प्रॉफिट भी वो अर्न कर पाएगा। जो फ्रेंचाइजर है उसने जो सारा एफर्ट है उन फ्रेंचाइजीज को दे दिया है, और उसको उसके बदले में उसका अपना उसका बिजनेस का नेम, ब्रांड नेम भी इंक्रीज हो रहा है, उसे जो मंथली अर्न होना चाहिए प्रॉफिट वो फीस रिसीव भी हो रहा है, फ्रेंचाइजी से रिसीव भी हो रहा है। आप देखते हैं इसी बेसिस पे जो आपके आसपास में बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे लाइक मैकडोनाल्ड ले लो, उसके अलावा डॉल्फिन स्कूल ले लो, ट्री स्कूल ले लो, उसके अलावा अपन देखे बहुत सारे रेमंड, ली, लिवाइस, एलन कूपर, एलन सोनली, ये इन सब के स्टोर्स ले लो, ऑल आर वर्क ऑन फ्रेंचाइजी बेसिस। होता क्या है, जो लोकल वहाँ के लोकल जो पर्सन है, यदि वो इंटरेस्टेड है वैसा बिजनेस स्टार्ट करने में, और वो जो फॉर्मल जो बेसिक मिनिमम कंडीशन है उस बिजनेस के लिए और वो फुलफिल कर रहे हैं, और जो मिनिमम अमाउंट है यदि वो इजीली इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एक एग्जिस्टिंग रेप्यूटेड बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आप देखते होंगे जैसे ली, लिवाइस, एलन कूपर, एलन सोली, ये जो शोरूम्स है, ये लोग क्या करते हैं, जो लोकल वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनको उसकी फ्रेंचाइजी दे देते हैं, और वो क्या करते हैं, उसी के प्रोडक्ट, उसी के जो प्रोडक्ट है उसी को सप्लाई करते हैं। जो डिस्काउंट है, जो प्रोडक्ट यदि मुझे मुंबई में मिल रहा है तो वही प्रोडक्ट वही प्राइसेस मुझे दिल्ली में भी अवेलेबल होगी, वही प्रोडक्ट वही प्राइसेस मुझे ली के शोरूम में जयपुर में भी अवेलेबल होगी। तो इस तरीके से हम फ्रेंचाइजीज, एक प्रोडक्ट की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं और उसके प्रोडक्ट की सेल इस तरीके से जिस एरिया में हम चाहते हैं वहां पे हम उसकी सेल कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजीज लेके हो सकता है हम उस प्रोडक्ट की सेल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सेल कर सकते हैं। और ये सब जो भी वर्क है एक पर्सन से तो पॉसिबल है नहीं, तो जो मल्टीपल पर्सन है उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। and this is the one method of external expansion. that means हमने हमारे बिजनेस के अलावा दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व किया है उस बिजनेस को एक्सपैंड करने में। अब जो ये गोली वड़ा पाव है उसी का फ्रेंचाइजिंग फैक्ट मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ।
The company is looking to strengthen its pan-India franchisee network. It is targeting especially Tier 1, Tier 2, and Tier 3 cities and small towns for expansion and opening more number of stores. It would like to partner with potential franchisee partners who can invest rupees 10 to 20 lakh. That means जो ये अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स देख रही है वो उन पर्सन को है जो इजीली क्या कर रहे हैं 10 to 20 लाख इजीली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और जो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं जो यहाँ से ये लिखा हुआ है कि ये जो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो उनको इजीली ये जो गोली वड़ा पाव है उसकी फ्रेंचाइजी अवेलेबल हो जाएगी. दैट मीन्स टायर 2 टायर 3 टायर 2 टायर 1 टायर 3 सिटीज में होना चाहिए स्मॉल टाउन्स में और 10 to 20 लाख रुपीज होने चाहिए किसी पर्सन के पास में. उसके अलावा जो स्टोर के लिए एरिया रिक्वायरमेंट 350 स्क्वायर फीट उसके पास एरिया होना चाहिए और जो प्रेफर्ड लोकेशन है इस टाइप के बिजनेस के लिए इस टाइप के बिजनेस के फ्रेंचाइज के लिए तो ओपनिंग एंड आउटलेट ए हाई स्ट्रीट ट्रैफिक एरिया लाइक मार्केट कॉलेजेस बिजनेस एरिया एंड रेजिडेंस. यदि ये सब हो रहा है तो इजीली हम जो इजीली किसी पर्सन को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इजी इस तरीके से ये सारी कंडीशन फुलफिल है तो सामने वाला जो पर्सन है उसको इजीली इस जो गोली वड़ा पाव है उसकी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर सकता है. तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि यदि किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए उस बिजनेस के रिलेटेड यदि किसी कोई इंटरेस्टेड है वो सेम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो ये जो बेसिक मिनिमम कंडीशन है वो एक पर्सन फुलफिल करना चाहिए. मिनिमम कंडीशन ये दैट मीन्स उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड हो 10 to 20 लाख रुपीज के अप्रोक्स. उसके पास में 1 स्टोर हो और उसमें एरिया रिक्वायरमेंट मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है 350 स्क्वायर फीट है और प्रेफर्ड लोकेशन है high street traffic areas like market, colleges, business areas and residential catchments. तो ये यदि एक एरिया है यदि ये सब आपके पास अवेलेबल है तो आप उस बिजनेस की फ्रेंचाइजी के लिए ट्राई कर सकते हैं. अब होता क्या है बिल्कुल जो ये गोली वड़ा पाव है बिल्कुल सिमिलर बिल्कुल जैसे आप देखते हैं बर्गर किंग है तो वेरी जो उसकी ब्रांचेस है अलग अलग जगह तो बिल्कुल सिमिलर है. इवन जो उसकी हम देखें उसका एम्बियंस देखें उसके अलावा हम उसके जो प्राइजेस देखे फूड प्रोडक्ट देखे. अब ऐसा नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर बर्गर किंग में गई हूँ और दूसरे में जा रही हूँ तो पता नहीं यहाँ पे क्या अवेलेबल होगा. ऐसा नहीं है. मुझे बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट्स बिल्कुल सिमिलर सर्विसेज मुझे सेम उसकी जो ब्रांच है सेम उस तो वहां पे अवेलेबल होगी. तो अब यदि कोई पर्सन वैसा सिमिलर प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली ही विल रिक्वायर्ड सम ट्रेनिंग सम इनिशियल स्टार्टअप हेल्प. दैट मीन्स जो उसकी जो मेन फ्रेंचाइजर है जो मेन पर्सन है बिजनेसमैन है वो उसको वैसा सिमिलर बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा एंड डेफिनेटली ही विल प्रोवाइड सम ट्रेनिंग्स. तो वो ट्रेनिंग अचीव करके वैसे सिमिलर सर्विसेज भी सामने वाले जो पर्सन है कस्टमर्स है उनको प्रोवाइड कर पाएगा. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसके बारे में द फ्रेंचाइजी विल गेट द 8 years old well established brand name with standard operating procedure in all aspect of business. The company will provide initial and refresher training for business owners. दैट मीन्स यदि सपोज कीजिए मैं एक इसकी जो गोली वड़ा पाव है उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहती हूँ तो डेफिनेटली जो ये बिजनेस है वो मुझे इसके ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा इससे रिलेटेड कि किस तरीके से आप ये बिजनेस ऑपरेट करेंगे किस तरीके से आप प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे. तो it provide initial and refresher training for business owners and store staff and end-to-end logistic support and regular replenishment of stock and operational support to monitor and drive business. तो जो कंप्लीट कंट्रोल है एक तरीके से जो सपोर्ट है लॉजिस्टिक सपोर्ट बोल सकते हैं. ये जो वेरियस डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड सपोर्ट है स्टॉक से रिलेटेड यदि कुछ चेंजेस लेके आते हैं तो वो चेंजेस अपग्रेडेशन वो सारी चीजों का सपोर्ट जो मेन जो बिजनेस है फ्रेंचाइजर है वो उन सब के लिए हेल्प करेगा. इज इट क्लियर? तो अल्टीमेटली जो फ्रेंचाइजिंग एड्स फ्लेवर टू फर्दर ग्रोथ.
सिंपली इसका मीनिंग है कि फ्रेंचाइज से आप आपके बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली एक्सपैंड कर सकते हैं, आप आपके जो बिजनेस की ग्रोथ है वो इंक्रीज कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ जो सेल है वो अब एक लिमिटेड एरिया तक एक्सपैंड नहीं है, जहां जहां आपने वो फ्रेंचाइजी ओपन करी है वहां वहां पे आपके प्रोडक्ट की सेल इजीली होने लगी है। तो इस तरीके से होगा क्या, एक फ्रेंचाइजी किस तरीके से आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करती है। द ब्रांड ऑफरिंग आर इकोनॉमिकल एंड फॉर द मासेस, दैट मीन्स एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए है। therefore it has access to a large customer base, it is committed to take vada pav from the Mumbai streets to a brand which will be known all over the world. Growing popularity of the concept has encouraged Goli Vada Pav number one to continue with its expansion plans. The brand encourages entrepreneurship and offer lucrative franchisee opportunity across India. दैट मीन्स यदि किसी भी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है और यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, रेप्यूटेड है, और उसके पास में यदि फूड से रिलेटेड वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है और एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है, रेप्यूटेड है, तो वो ऐसे बिजनेस की या ऐसे सिमिलर बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले सकता है। So the company plans to have 500 outlets by the end of the year 2015. So that means जो at the end of 2015 जो कंपनी का टारगेट था वो था 500 outlets ओपन करना। इज इट क्लियर? तो अब आपको समझ में आएगा फ्रेंचाइजी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं कि इसके बारे में क्या बताया है। यहाँ पे कुछ इमेजेस गिवन है, कुछ केस स्टडीज गिवन है। जो नेचुरल आइसक्रीम्स है आप देखते होंगे, नेचुरल आइसक्रीम अब तो अपना जो इसका आउटलेट वैशाली नगर में भी ओपन हो गया है। तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो जगह जगह जो इसके आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं तो बेसिकली फ्रेंचाइजी इनके थ्रू ओपन हो रहे हैं। जो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन है, लोकल पर्सन है, वो उस बिजनेस की क्या ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। इज इट क्लियर? अब हम सबसे फर्स्ट जो फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन है वो देखते हैं। फ्रेंचाइजिंग इज एन अरेंजमेंट, franchising is an arrangement whereby the manufacturer or sole distributor, मैन्युफैक्चरर मीन्स जो उस गुड्स को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और सोल डिस्ट्रीब्यूटर दैट मीन्स यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर है किसी गुड्स का और फिर ट्रेडमार्क प्रोडक्ट और सर्विस गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। किसको दे देता है राइट? एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स उस एरिया के एक पर्सन को राइट दे देता है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रिटेलर्स को राइट दे देता है कि वो अपने उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, उसके उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एक राइट दे देता है एक जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूट, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस गुड्स का वो एक राइट दे देता है लोकल जो रिटेलर्स को, लोकल बिजनेसमैन को। और राइट क्यों देता है, वो क्यों देता है, अपना जो बिजनेस को दूसरे से शेयर करता है इन रिटर्न फॉर देयर पेमेंट। तो उसके लिए जो फ्रेंचाइजी है वो मंथली क्या करेंगे, एक जो फ्रेंचाइजर जो मेन बिजनेस ओनर है उसको उसके लिए रिटर्न पेमेंट करेंगे मंथली। क्यों करेंगे पेमेंट? क्योंकि उसने बिल्कुल एग्जिस्टिंग रेप्यूटेड बिजनेस आपको शेयर किया है, आप उसके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। यदि आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते तो आपको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता, बहुत सारी मार्केट स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ती, आपको आपके बिजनेस बहुत सारे प्रमोशन करने पड़ते बिजनेस के लिए। अब उसने क्या किया, आपको एग्जिस्टिंग एक रेप्यूटेड बिजनेस आपसे शेयर किया है तो उसके लिए वो डेफिनेटली आपसे कुछ चार्ज करेगा, और वो जो फीस चार्ज करेगा उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। in return for their payment of royalties and conformance of standardized operating procedure। प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यदि मैं फ्रेंचाइजी ले रही हूँ, सपोज कीजिए मैकडोनाल्ड की, तो एक जो नॉर्मल बर्गर है 25 रुपीज का मिलता है, नहीं मैं तो 50 रुपीज चार्ज करूंगी, ये वाली आइसक्रीम नहीं ये वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड कराऊंगी। नहीं, जो मेन बिजनेस है जिस तरीके से ऑपरेट होता है उसी तरीके से सिमिलर, कोई वेरिएशन नहीं करना होता, वैसा का वैसा सिमिलर फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। वैसी की वैसी प्राइसेस, वही फेस्टिवल ऑफर्स, वही डिस्काउंट, वही जो मेन्यू, तो वही यदि हम बात करें प्रोडक्ट्स तो वही प्रोडक्ट।
तो बिल्कुल सिमिलर प्रोवाइड करती है। अब आगे यहाँ पे बोला गया द पर्सन ऑफरिंग द फ्रेंचाइजी इज नोन एज फ्रेंचाइजर। जो पर्सन, जो मेन ओनर है उस बिजनेस का, जो किसी दूसरे से अपना बिजनेस शेयर कर रहा है, वो है फ्रेंचाइजर। उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजर। और वैसे भी मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि ओ आर मतलब देने वाला, डबल ई मतलब हमेशा लेने वाला। एंड द फ्रेंचाइजी इज द पर्सन who purchase a franchisee and is given the opportunity to enter into a new business with a better chance to success than if he or she were to start a new business from scratch. दैट मीन्स फ्रेंचाइजी कौन है? वो पर्सन है जो फ्रेंचाइजी परचेज कर रहा है। और रीजन इसलिए है कि एक तो उसको खुद का बिजनेस बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा, और दूसरे उसको जो फेलियर के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इज इट क्लियर? और जो इन दोनों के बीच में किस बेसिस पे ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो डिपेंड ऑन द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप इज द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। दैट मीन सिंपली है, यदि दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रेंचाइजर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मेरा बिजनेस शेयर करने को रेडी हूँ, फ्रेंचाइजी बोल रहा है कि मैं आपके बिजनेस जो आपके डील्स है, कंडीशंस है, उनको फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ। तो डेफिनेटली इन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है। उसके अंदर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है, मेंशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द profit sharing ratio, terms and condition related to the operation, जो भी उन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी चीजें, तो वो सब चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है, ताकि दोनों जो भी वर्क करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। और यदि कुछ चेंजेस लेके आने तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वो चेंजेस मेंशन करते हैं, लेके आते हैं। तो बेसिकली फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट होता है। तो व्हाट इज फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट? A franchisee agreement is a legal document that binds the franchisor and franchisee together. Legal bind, that means यदि कोई उस franchisee agreement के according work नहीं करता है, तो उसको जो अपोजिशन पार्टी है, इट में भी फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी, उसको कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट सपोज कीजिए फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में डिसाइड हुआ था कि 20% प्रॉफिट है जो वो फ्रेंचाइजर को देना, और फ्रेंचाइजी बाद में डिनाई कर देता है किसी भी रीजन से, मैं इतना नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो फ्रेंचाइजर कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट शो कर देगा, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट शो कर देगा, एंड उसके बेसिस पे वो उस पर कोर्ट केस भी कर सकता है। इज इट क्लियर? This document explains what the franchisor expect from the franchisee in running to the business. This agreement is designed to assure that all the franchisees within the organization are treated इक्वली। दैट मीन्स जो सबके लिए जो रूल एंड कंडीशंस है, जो उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, उनके लिए सबके लिए जो कंडीशंस है वो सिमिलर है। तो इस कंप्लीट जो दोनों पैरा है, उसमें हमने फ्रेंचाइजिंग के बारे में देखा, व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग। उसके अलावा हमने देखा who is the franchisor, franchisee, and what is franchisee agreement। तो ये सब हमने यहाँ पे स्टडी किया। आप यदि अभी आप सब लोग गूगल नेट सब यूज कर रहे हैं, आप बहुत सारे बिजनेसेस है, आप एग्जांपल देखोगे बहुत सारे बिजनेसेस। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस आप इस तरीके से नेट पे सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हो जाएंगे। इवन जो अपनी बुक है उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है, पेज नंबर 146 है। वहां पे ये देखिए, जैसे कि डाबर है, बहुत सारे एग्जाम्पल, 3 to 4 एग्जाम्पल्स है। मैं इनको एक बार बता रही हूँ। डाबर इज नॉट द फर्स्ट बिग एस्टेब्लिश ब्रांड दैट हैज टेकन अप फ्रेंचाइजिंग फॉर एक्सपेंशन। तो जो डाबर है, डाबर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसने भी अपने बिजनेस में क्या ली हुई है? फ्रेंचाइजी ली हुई है। दैट मीन्स ये बिजनेस में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फ्रेंचाइजिंग फॉर्म यूज करता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में मेंशन है।
जैसे यहाँ पे रेमंड जो क्लोथ शोरूम है वो भी अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराता है। आप देखेंगे कि जगह जगह रेमंड के शोरूम है, तो बेसिकली इट्स अ फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। इसमें जो रेमंड है वो अलग अलग पर्सन्स को उसकी बिजनेस की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा रहा है। तो वी बेसिकली ऑप्टेड फॉर फ्रेंचाइजी model for expanding in smaller towns as these are not affected by the recession, and the franchise stores can be driven by the local entrepreneurs who are aware of the preferences of the लोकल कस्टमर्स। तो ये उन लोगों को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है और उसके अलावा जो लोकल लोगों की प्रेफरेंसेस के बारे में जानते हैं। उसके अलावा जो NIIT है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है वो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स के लिए, क्लोथ के लिए, तो ऐसा नहीं कि इन्हीं सेक्टर में फ्रेंचाइजी किसी भी फील्ड में अवेलेबल हो सकती है। वो एक स्कूल हो सकती है, वो एक शोरूम हो सकता है, वो एक मूवी थिएटर हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है NIIT ए वेल नोन name IT education industry has a franchising network of more than 12,500 centers। उसने फ्रेंचाइजिंग के थ्रू कितने सेंटर्स ओपन कर रखे हैं? 12,000 सेंटर्स स्प्रेड ओवर इन मोर देन 40 कंट्रीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है JSW स्टील लिमिटेड, third largest steel manufacturer in India, operates 174 JSW shops outlet that work on the franchisee model. Is it clear? Next है Mahindra and Mahindra Limited, a part of the Indian industrial conglomerate. Mahindra Group has taken the franchisee route to expand its 100% subsidiary. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन हैं जो मेंशन कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, अपने बिजनेस की जो सेल है उसको एक्सपैंड करते हैं, प्रॉफिट को एक्सपैंड करते हैं थ्रू द फ्रेंचाइजी। अब जो हम फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे रीड कर रहे थे, हम उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो बेसिकली फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट क्या है? Franchisee agreement is a legal document that binds the franchisor and the franchisee together. Is it clear? This document explains what the franchisor expects from the franchisee in running the business. Now, student, we are moving the main ingredients of franchisee agreement. First, the main ingredient of a franchisee agreement. Basically, there are 4 main ingredients of franchisee agreement. First one is contract explanation. Second one is operational manual. Third one is proprietary statement. And the last one is ongoing site maintenance. तो कहने का मतलब है यदि एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट यदि क्रिएट होगा तो उसके अंदर डेफिनेटली इन सब चीजों को मेंशन करना कंपलसरी हो जाता, कंपलसरी है कि मतलब ये वाले पार्ट आपको एक जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है उसके अंदर मेंशन करना कंपलसरी है, जरूरी है। फ्रेंचाइजर को और फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी को इन दोनों मैटर पे डिस्कस करना, दोनों को म्यूचुअली एग्री करना, इन दोनों पॉइंट्स पे जरूरी है। First one main ingredients of franchisee agreement is contract explanation. What is contract explanation? The contract explanation is the part of the agreement that outlines the type of relationship a franchisee entering into the franchisor. तो दैट मीन्स इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर बेसिकली उनका रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट के लिए एंटर हो रहे हैं, किसी सर्विस के लिए एंटर हो रहे हैं, यदि प्रोडक्ट के लिए एंटर हो रहे हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करेंगे ये या किस तरीके से करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, तो उनका रिलेशनशिप क्या है, किस बेसिस पे उन्होंने एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किया है, किस बेसिस पे क्या चीज की वो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन है ऑपरेशंस मैनुअल। What is operations manual? The operations manual is the section of the agreement that details the guidelines that the franchisee must legally follow in operating the business as outlined by the franchisor.
दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि किस तरीके से ऑपरेशनल मैनुअल बेसिकली आप देखेंगे तो रिलेटेड, ऑपरेशनल मैनुअल मतलब वर्क, मैनुअल इज रिलेटेड टू एक्चुअल वर्क, तो किस तरीके से वर्क करना है, क्या वर्क करना है, तो उसके बारे में जो कंप्लीट गाइडलाइंस है वो एक ऑपरेशनल मैनुअल जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट का पार्ट है उसके अंदर मेंशन होती है. तो बेसिकली ऑपरेशनल मैनुअल इज द सेक्शन ऑफ द एग्रीमेंट दैट डिटेल्स द गाइडलाइंस that the franchisee must legally follow in operating the business as outlined by the franchisor. Is it clear? अब जो भी चेंजेस है इसके अंदर, कुछ भी वेरिएशन कर रहा है फ्रेंचाइजर, कुछ भी चेंजेस लेके आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो यदि कोई मेथड चेंज है, किसी वे को जो प्रोडक्ट को सप्लाई करने का, मैन्युफैक्चरिंग को करने का, कुछ भी वेरिएशन लेके आ रहे होते हैं, तो इस पार्ट के अंदर चेंजेस करने होते हैं. तो फ्रॉम टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स मे बी मेड एंड द फ्रेंचाइजी मस्ट बी प्रिपेयर टू एडजस्ट ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली. इज इट क्लियर? यदि कोई भी चेंजेस आएंगे तो फ्रेंचाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें मेंशन करेगा इस एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट को चेंज करेगा, अमेंड करेगा, और फ्रेंचाइजी क्या करेगा, जो उसने चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में वो भी क्या करेगा, चेंजेस करेगा. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया था. सेकंड था जो ऑपरेशन मैनुअल, वो कंप्लीट हो गया. थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट. प्रोप्राइटरी बेसिकली इज रिलेटेड टू द ओनर. प्रोप्राइटरी मीन्स ओनर. तो प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट क्या है? प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट आउटलाइंस how the franchisee name is to be used as well as marketing and advertising procedure in place the franchisee will be required to follow. Is it clear? तो proprietary statement basically बताता है कि किस तरीके से वो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करेगा और वो फ्रेंचाइजी नेम किस तरीके से यूज करेगा, फ्रेंचाइजर का नेम किस तरीके से यूज करेगा. तो also the franchisor documents how much the franchisee will be required to contribute toward the national advertising efforts. कंपनी यदि एडवर्टाइज कर रही है, यदि मैकडोनाल्ड है या रेमंड्स का है, तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से सारे जो उसके फ्रेंचाइजी है उन सब के लिए एडवर्टाइजमेंट होगा. तो यदि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होगा तो कितना परसेंट, कितने रुपीज है वो जो फ्रेंचाइजी है वो ट्रांसफर करेगी फ्रेंचाइजर को, तो ये सब उसके अंदर मेंशन होता है. इज इट क्लियर? लास्ट वन है ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस. दैट मीन्स जहां पे वो बिजनेस ऑनगोइंग होता है, वो ऑपरेशन ऑनगोइंग होता है, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, किस तरीके से मेंटेन करेंगे, और जो उसका मेंटेनेंस है उससे रिलेटेड है, तो वो सारी कंडीशंस ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस में लिखी भी होती है, मेंशन करते हैं एग्रीमेंट के अंदर, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो. Ongoing site maintenance is another item that is outlined in the agreement. Included are the types and the time frames regarding various maintenance items and upgrade that must be made to the franchisee location. That means ये जो भी फर्नीचर यूज करेंगे वो कितने ईयर्स तक यूज करेंगे, जो ये एम्बियंस है जिसको डेकोरेट किया है वो आपको कब तक रखना है, कब चेंजेस करने हैं इसके अंदर, या जो प्रोडक्ट सर्विस ऑफर मेथड है वो कब चेंज करने हैं, तो सब उसके अंदर मेंशन रहते हैं इस एग्रीमेंट के अंदर. तो इस एग्रीमेंट में मेंशन करने का रीजन क्या होता है? इन सब चीजों को मेंशन करने का रीजन होता है कि इन चीजों के कारण, इन थिंग्स के कारण जो फ्रेंचाइजर है और फ्रेंचाइजी है उन दोनों में कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो, और यदि कोई भी इन रूल जो एग्रीमेंट्स की कंडीशन है उनको ब्रेक करता है, तो जो अपोजिट है, इट में भी फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी कोई भी हो सकता है, तो वो उसको कोर्ट में शू कर सकता है. तो बेसिकली इन सब डिस्प्यूट्स को से बचने के लिए एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है. इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट मेरा ये आज का वीडियो यही कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग, जो वेरियस टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग अवेलेबल है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे.
उसके अलावा जो वेरियस टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग, वेरियस रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फ्रेंचाइजिंग, उन सब के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर इंटरनल एक्सपेंशन, एक्सटर्नल एक्सपेंशन की डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया। उसके अलावा हमने फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन देखी। उसके अलावा फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन देखी। इसके अलावा जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है उसके बारे में हमने स्टडी किया। वेरियस फॉर्म्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशंस मैनुअल, प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में स्टडी किया है। स्टूडेंट, जो आज का आपका जो वर्क है वो ये है कि आपको इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो आपकी नोटबुक में प्रिपेयर करने हैं। और किसी को भी कोई डाउट है तो आप वो लाइव इस टाइम क्लासेस जो स्कूल के द्वारा पर्टिकुलर शेड्यूल पे है, डेट एंड टाइम पे है, तो आप उसमें कोई सी भी जो डाउट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।